नमस्कार सकलके हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबाई के नमस्कार नमस्ते सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए जो आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाए हैं। तो मैं डेफिनेटली ये वीडियो हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में रखूँगी। मुझे येस्टरडे को एक कमेंट में देखने को मिली, एक कमेंट किए थे एक कैंडिडेट एक लर्नर ने कि इंग्लिश के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इंग्लिश के लिए गेट 2025 के लिए। आई वॉन्ट टू थैंक हिम और हर ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हें और तुझे और आपको। तो पहले मैं बंगाली में कह लेती हूँ फिर हिंदी में कहती हूँ। उससे पहले प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स एंड keep watching SP literature, keep learning SP literature from SP literature। তো শুরু করছি আমরা আজকে আমরা এক্সপেক্টেড কাট অফ নিয়ে আলোচনা করব। গতকাল আমাকে কমেন্টে জানানো হয়েছে এবং তাতে কি হয়েছে আমার আরও যে ভিডিওটা হয়তো আমি দুদিন পরে নিয়ে আসতাম তার জন্য দুদিন আগেই নিয়ে চলে এলাম। আর যে কমেন্ট করেছে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তাকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে একটা ভালো বিষয় মনে করিয়ে দিয়েছে আমাকে। তো সেই এক্সপেক্টেড কাট অফ নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবং তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে এই ভিডিও। আমি অনেক পরিশ্রম করে ঘেটে ঘেটে নিয়ে এসেছি, আজকে এই ভিডিওটা আমি বানিয়েছি নিজেরই ইউটিউবের ভিডিও, আগের ভিডিও দেখে ডেসক্রিপশন বক্সে লেখা ছিল এগুলো অলরেডি আমি আগেই যখন ভিডিও বানিয়েছি লিখে রেখেছিলাম। দুটো ভিডিও সার্চ করে আমি এগুলো পেয়ে গেছি ডেটা, আমাকে আর নতুন করে গুগল বা অন্য কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে সার্চ করতে হয়নি, আমি এখানেই পেয়ে গিয়েছি। থ্যাঙ্কস টু এসপি লিটারেচার, থ্যাঙ্কস টু মাই সেলফ। তো আজকে শুরু করছি বলা। প্রথমত তো 2021 কাট অফ এটা ফাইনাল কাট অফ, যেটা অলরেডি কাট অফ দিয়ে দিয়েছে সেখানে, কারণ প্রথম হয়েছিল 20-তে নোটিফিকেশন এবং এক্সাম, 20-তে এক্সামের নোটিফিকেশন এবং 21-শে ফার্স্ট এক্সাম হয় ফেব্রুয়ারিতে এবং তারপর রেজাল্ট মার্চে হয়। তো প্রথমেই আমরা দেখেছি আনরিজার্ভ বা জেনারেল ক্যাটাগরি 41.7%। আর এই এক্সামটা 100 নম্বরের মধ্যে হলেও যখন আমাদের রেজাল্ট হয় মার্কসটাকে 100 নয় 1000 হিসেবে ধরে তারা ক্যালকুলেট করেন, কিন্তু কাট অফ যেটা নিয়ে আসেন ওখানে কিন্তু কোনো পার্সেন্টেজ বা পার্সেন্টাইলের কথা বোধহয় লেখা থাকে কিনা জানি না, কিন্তু এটাকে আমরা পার্সেন্টেজ ধরেই বলছি। কোনো অসুবিধা নেই পার্সেন্টেজ বা পার্সেন্টাইল ধরে যেটাই নিয়ে আসুক না কেন, কারণ এখানে হচ্ছে বিষয় হচ্ছে এখানে নেটের থেকে একটু হলেও তো আলাদা বিষয়টা, তো এখানে অসুবিধা হবে না বোঝার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। আর অতিরিক্ত মাত্রার ক্যান্ডিডেটও এখানে নেই, খুব জোর বলতে পারি 6 থেকে 7000 বা ম্যাক্সিমাম 8000 ক্যান্ডিডেট এখানে পরীক্ষা দিয়েছে ইংলিশের জন্য। তো এখানে নেটের মতো কিন্তু কম্পিটিশন বা নেটের মতো নেই, কিন্তু এখানে নেগেটিভ মার্কিং আছে, অনেক কিছু বিষয় আছে। আর অবশ্যই গেট রিলেটেড যাবতীয় তথ্য প্লেলিস্টে গেলে 11টা ভিডিও অলরেডি দেওয়া আছে, ওখানে সব দেওয়া আছে এবং ইন ফিউচার আরও যেগুলো নতুন করে গেটের রিলেটেড হচ্ছে সেগুলো আমি ওখানে অ্যাড করে দেবো প্লেলিস্টে। ওকে, সো শুরু করা যাক। আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি বা জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য 41.7 ছিল কোন সালে 21-এ, এবং ইডাব্লিউএস ওবিসি এবং এনসিএল বলেও একটা ক্যাটাগরি থাকে ইফ আই এম নট রং, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি। তো 37.5 ছিল এবং এসসি এসটি পিডব্লিউডি একই কাট অফ নিয়ে আসেন ওনারা, গেট নেটের মতো নয়, একটু হলে আলাদা, আমি বারবার বলছি। তো সেখানে 27.8, ঠিক আছে 27.8। আর এখন আমি আলোচনা করছি তারপরে হচ্ছে বিষয় নেক্সট হলো 2022-এর 51.9 জেনারেলের জন্য, কেন সেবার হয়তো কোয়েশ্চেন ইজি হয়েছিল এবং ক্যান্ডিডেটও ভালো পারফর্ম করেছিল। 51.9, আর প্রথমের শুরুতেই তো আমরা জানি একটা যে কোনো বিষয় একটু কম ইয়ের থেকে শুরু হয়, স্টুডেন্টের বুঝতে হয়। নেক্সট ইয়েতে 51.9 জেনারেল, তারপরে হয়েছে ইডাব্লিউএস ওবিসি একই হবে 47.6 এবং এনসিএল ক্যাটাগরিটাও। তারপর এসসি এসটি পিডব্লিউডি 34.5 আর 34.7 সামথিং এরকম ছিল, এটা আমি একটু কনফিউশনে ছিলাম তার জন্য দুটোই লিখে রেখেছিলাম, ঠিক আছে, এর বেশি নয়, 34.5 to 7 এর মধ্যেই ছিল। আর 2023-এর ফাইনাল কাট অফ ছিল জেনারেল বা আনরিজার্ভ 52.4। আগেইন বলবো যে প্রশ্নপত্র হয়তো একটু হলেও সোজা হয়েছিল এবং ক্যান্ডিডেটরা ভালো পারফর্ম করেছিল। ইডাব্লিউএস ওবিসি এনসিএল 41.7 এবং এসসি এসটি পিডব্লিউডি 34.9% মানে এখানে। তারপর 2024-এ ফাইনাল কাট অফ ছিল জেনারেল বা আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি 48%, ইডাব্লিউএস 42.20, সেটা আমি দুবার লিখেছি, ও তো 42.20 এটা ইডাব্লিউএস ওবিসি এনসিএল তিনটের জন্য কিন্তু একই, ঠিক আছে। আর এসসি এসটি পিডব্লিউডি 32% এবং নেক্সট হচ্ছে 2025-এর এক্সপেক্টেড কাট অফ। আমি এক্সপেক্টেড কাট অফ বলছি 50%-এর নিচে যাবে, কোয়েশ্চেন এবার টাফ হয়েছিল, ডিফিকাল্ট হয়েছিল, মডারেট টু ডিফিকাল্ট। সো জেনারেল আর আনরিজার্ভ 44 থেকে 46 অ্যান্ড ইডাব্লিউএস ওবিসি এরা আর এনসিএল 39 থেকে 41 এবং এসসি এসটি
পিডব্লিউ 34 to 36, তার মানে আমি এখানে নিয়ে এসেছি একবারে যদি বলা যায় এটা 35 40 আর এখানে 46, ঠিক আছে 45 to 46 লিখেছি, এটা 46 মানে এরমটা আমার মনে হচ্ছে। এবার কমবে কাট অফ, বাড়বে না। এবং এটা আমি বললাম এটা কিন্তু একদম আবারও বলবো এটা কিন্তু একদম এক্স্যাক্ট নয়, এর থেকে 2-1% বাড়তেও পারে কমতেও পারে, কিন্তু এর খুব বেশি বাড়বে না এটুকু আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু ভুল হলে তোমরা আমার উপর কেউ রাগ করো না, আমাকে কেউ ভুল বুঝো না, কারণ আমরা মানুষ মাত্রই ভুল হতেই পারে। এক্সপেক্ট করছি তোমরা চাইছো তাই নিয়ে এলাম পরিশ্রম করে, তো এটাই হচ্ছে বিষয়। ভুল মানুষ মাত্র হতেই পারে, আমি আগাম বলে রাখলাম, যদি ঠিক না হয় ভুল হয় বা একটু অনেকটাই নাম্বারের ডিফারেন্স হয়, সো আই এম সরি, সেটা কমতেও পারে বাড়তেও পারে, কিন্তু এক্সপেকটেশনস তোমাদের জন্য এটা বানানো যে মানসিক একটা শান্তিতে থাকবো আমরা এই কদিন। তো এটাই আমি এখন हिंदी बोले वीडियो टॉक करছি। अभी मैं इसको हिंदी में कह के वीडियो को ऑफ कर रही हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए। ये गेट IIT रूड़की ने जो 2025 में लिए है, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट में है। पहले मैं बता देती हूँ प्रीवियस, ये अगर देखेंगे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएंगे। मैं खुद के ही 2 वीडियोस गेट रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे 11 वीडियोस थे टोटल, उसमें से 2 वीडियो को मैंने खुद क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये सारी डेटा कलेक्ट करके ये वीडियो लेकर आई, क्योंकि मुझे अपने ही वीडियो से हेल्प मिल गई। मतलब एसपी लिटरेचर से आई वांट टू थैंक एसपी लिटरेचर एंड आई वांट टू थैंक माई सेल्फ, क्योंकि मुझे यहाँ से मिल गई, मुझे कोई किसी और के वीडियो या फिर गूगल पे या फिर कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि मेरे ही घर पे ये सारी चीज़ें रेडी थी। तो थैंक्स टू माई सेल्फ, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एसपी लिटरेचर। तो ये अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएंगे। उससे क्या होंगे, उससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए बहुत हेल्प होंगे। और मैंने जो एजीसी नेट के लिए कहा था वही मैं गेट के लिए भी कहूँगी, क्योंकि अगर आप ये दिमाग में रखोगे, सिलेबस के साथ साथ कट ऑफ दिमाग में रखोगे, अपीयरिंग कैंडिडेट के नंबर ये सारे दिमाग में रखोगे, तो आप लोगों को हेल्प होंगे कि कितने कंपटीशन बढ़ सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने कट ऑफ जा सकते हैं। उस बेसिस पर उसको दिमाग में रखकर प्रिपेयर कर सकते हो और उस टारगेट को अचीव कर सकते हो सक्सेस होने के लिए और एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये एक सेज C2 इंग्लिश के सब्जेक्ट कोड है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट कोड है एक सेज। ये गेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में फाइनल कट ऑफ थे, ये सारी चीज़ें फाइनल थे। और इस बार मैं जो एक्सपेक्टेड बोल रही हूँ बाद में ये फाइनल भी लेकर आऊँगी, इस पर आपको जगह फक्का ब्लैंक दिख रहे होंगे, मैं इसके बाद भी वीडियो बनाऊंगी आफ्टर रिजल्ट। तो 41.7 थे अनरिजर्व्ड, EWS OBC के लिए सेम थे, और NCL भी एक कैटेगरी है, उसके फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, आप लोग प्लीज देख लेना। 37.5 एंड SC ST PWD इन 3 लोगों के 3 कैटेगरी के लिए 27.8। और गेट नेट से थोड़ी अलग है, आप लोगों को पता है, थोड़ी नहीं बहुत अलग है, तो ये भी डिफरेंट है। और यहाँ पे 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, लेकिन उसको 1000 को पकड़कर एज्यूम कर वो लोग कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं। यहाँ पे कोई परसेंटाइल की अभी तक कोई बात नहीं है, परसेंटेज की है, लेकिन हम लोगों को जब मार्कशीट मिल जाएंगे रिजल्ट के तब पता चलेगा किस लैंग्वेज में और किस वर्ड्स में थे परसेंटाइल और परसेंटेज। डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट पहले वाला जो एग्ज़ाम होता है हर चीज़ में पहले थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा हम लोग नहीं पता है, तो पहले वाला ऐसे थे। नेक्स्ट एग्जाम में अगर देखो कि 22-23 में एग्जाम क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ने भी अच्छे परफॉर्म किए, तो उन लोगों के कट ऑफ थे जनरल के 51.9, EWS OBC के 46.7, SC ST PWD के 34.5 से 34.7। मुझे यहाँ पे थोड़ी डाउट थी, इसलिए मैं दोनों लेकर आ गई, या इससे ज़्यादा नहीं यही थे ना। फिर 2023 में हमें 52.4 इस टाइम पे देखा जा रहा है कि क्वेश्चन जनरल ने अच्छे परफॉर्म किए, EWS OBC NCL उनके कट ऑफ घट गई 41.7, और कैंडिडेट अपीयरिंग कैंडिडेट परफॉर्मेंस के ऊपर भी और क्वेश्चन के पैटर्न के डिफिकल्टी के ऊपर भी निर्भर करते हैं। एंड अवश्य एंड ऑफकोर्स कितने कैंडिडेट अपीयर किए हैं उन लोगों के लिए भी ये मैटर करते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ईजी हो, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल की, कितने एग्जाम दी, किसने एग्जाम को क्वालिफाई की, इसके ऊपर कट ऑफ निकाली जाती है। ओके, तो फिर SC ST PWD के लिए 34.9% थे। ओके, नेक्स्ट 2024 में 48 थे जनरल और अनरिजर्व के लिए, EWS OBC एंड NCL तीनों के लिए 42.20% थे, और SC ST PWD तीनों के लिए 32। तो इसमें हम दिख रहे हैं कि EWS OBC NCL इनके लिए एक कट ऑफ निकाली जाती है, और SC ST PWD एक ही कट ऑफ निकाली जाती है, और जनरल के लिए एक फिक्स्ड। नेक्स्ट 2025 के मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि जनरल के लिए 50 से नीचे 45 से 46 के बीच आने के चांसेस है, 44 to 46 के बीच, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे मुझे लग रही है, जा भी सकता है, आई डोंट नो। EWS OBC और NCL इनके लिए 40% जा सकते हैं, 39 से 41 के बीच, SC ST PWD के 35%, मतलब 34 से 36 के बीच में ये मुझे लग रही है। ये एक बात बता दूं, ये फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2-1% घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मेरी बातें टू द पॉइंट ना मिले तो मुझ पर गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह
तरह इंसान हूँ, ह्यूमन बींग हूँ, तो गलती इंसान से ही होती है। अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ अपने घर के बेटी बहन टीचर लर्नर जो भी समझते हो समझ के क्षमा कर देना। ओके, सो मुझ पर गुस्सा मत हो जाना और खुद पे भी गुस्सा मत कर लेना। तो ये है मेरी आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप लोगों ने कहा और जो कमेंट की उनको थैंक्स, उसको थैंक्स। और इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई। हो सकते थे मैं ये 2 दिन बाद लेकर आऊँ, लेकिन लेकर आई। उसके लिए मुझे याद दिलाने के लिए बहुत थैंक्स। और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। आप लोगों को कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी पढ़ाई करके। और ये 2025 कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, अनरिजर्व, EWS, OBC, NCL, ST, SC, ST, W, मैं ये ब्लैंक रखी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रिजल्ट के बाद कट ऑफ लेकर आनी है। यही नोट खाता में लेकर मैं आऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड टू एसपी लिटरेचर। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट भी कीजिए, सजेशन भी दीजिए, जो भी मन चाहे आप लोगों को प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एसपी लिटरेचर आप लोगों की बात सुनकर खुद को प्रिपेयर करेगी, आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएगी। और धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुद अच्छे रहिए, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। বেল আইকনকে প্রেস করে হিট করে রাখুন যাতে করে কোনো নোটিফিকেশন মিস না হয়ে যায়। আর অবশ্যই নিজে ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন আর পড়তে থাকুন, এসপি লিটারেচারের সাথে জুড়ে থাকুন। গড ব্লেস ইউ। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুক। নমস্কার। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। नमस्ते सभी को, थैंक्स फॉर टुडे एंड सभी लोग अच्छे रहिए। बाय।